अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। My name is Dr. Kamal Kaisar, and by profession I am a medical doctor. I am a pediatrician child specialist. I was a very career passionate kind of a person because I come from a family of doctors. When it's all about professionalism, that's what you're thinking about. But ultimately what happened about 25 years back, I very accidentally went to a Quran class, and that changed my perspective towards life. I realized there is more to life than just being passionate about your career. And we started classes for children in 1999 by the name of Colors of Islam. वहाँ से मुझे टीचर बनना पड़ा. So I started meeting with different people, psychologists, educationists, started learning from them. हम सबको पता होती है वो सब बातें. But what makes some content very effective, that's what the challenge is. फिर इसके साथ साथ my journey started going in other diverse fields. People think कि if someone is related to Quran तो उनसे कोई वजीफ़ा पूछ लें. तो जब वो वजीफ़ा पूछते थे तो I would get desperate because I could see that yes, there are more than 100% solutions coming from Quran and Sunnah, but then there are the skills that you have to learn as well. I started learning from psychologists and psychiatrists. आज जो टॉपिक जो मैं आपके साथ कर रही हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये वो टॉपिक है जिसको हमने थ्योरेटिकल नहीं समझना, हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझना है. I would want you to understand emotional intelligence, the importance of this emotional intelligence in your working environment and also in your homes. We will talk about different domains of emotional intelligence. जब मैंने वो सेशन उनका लिया, ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे या यंग फ्रेश ग्रेजुएट्स थे साइकोलॉजी के, and they were asking questions, and lot of them, the questions that they asked were related to one form or the other form of domestic abuse at home. Like जी अम्मा अब्बा शाउट बहुत करते हैं, मियाँ बीवी की नहीं बन रही, कोई बहन भाई है घर में जिसकी बहुत सारे psychological challenges हैं, and they were not able to resolve those challenges. So ultimately when I gave my feedback to the concerned people, I told them that what I have learned from a lot of gurus in different fields is, they tell me that first you apply all these principles in your own life. If you'll only think of it as a subject, you will never be able to accomplish anything. तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, इसको हमने अपने लिए समझना है. बिकॉज मैंने आपको बताया कि मेरा कंसर्न था व्हेन आई टुक दैट सेशन दैट दोज पीपल whom we are training to go out and serve others, जिन्होंने जाके दूसरे लोगों को सिखाना है, जिन्होंने दूसरे लोगों को एम्पावर करना है, they themselves are not empowered in their own families, in their own self, in their own interactions. और आप सोचें कि एक टीचर के लिए हमेशा कहा जाता है एट एनी स्टेज, once you set foot in your institution, leave your problems behind. You have to act like a teacher, and it is not easy. It's not easy कि आपका अपना जो एक बैगेज चल रहा है, आप अपना स्विच ऑन ऑफ करें. It is very difficult, और वो हम बैगेज कैरी कर रहे होते हैं. अब मैं वैसे जनरली रिसर्चेस देख रही थी, मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी. कुछ साइटेशन से हमें पता चलता है कि नाउ डेज दे आर फोकसिंग मोर ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस. विद पैसेज ऑफ टाइम दे हैव रियलाइज, क्योंकि मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को बहुत एड्रेस किया जा रहा है, और जब से मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को एड्रेस किया जा रहा है, दे हैव रियलाइज दैट इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और आप देखिए हमारे कितने स्टूडेंट्स, टीचर्स एंजाइटी या डिप्रेशन के साथ हैं. Definitely we all understand that teaching is a very stressful profession. छोटे बच्चे को काबू करना भी आसान है, उसे पढ़ाना भी आसान है, उसके challenges भी आसान है. And as you come to the university level, you do feel desperate कि student आपका जिस तरीके से आपसे deal करता है और आपको convey भी करने हैं concept सारे. Definitely there is lot of burnout of the teachers as well. What we need to understand with emotional intelligence is सोशल स्किल्स कम हैं और उनको डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जितनी इमोशनल इंटेलिजेंस होगी उतने ज़्यादा सोशल आपके स्किल्स भी ज़्यादा डेवलप होंगे. अगर हम करंट स्टूडेंट्स को देखें, वी डेफिनेटली सी देयर इंटरपर्सनल स्किल्स आर नॉट डेवलप्ड. ज़रा सी बात पे लड़ना, झगड़ना, बदतमीज़ी करना,
बहुत आसान है उनके लिए। मैंने देखा है कि टीचर्स वहाँ पर भी कैसे स्टूडेंट्स के साथ चीख चिल्ला रहे होते हैं। आई कैन सी दैट देयर इज़ नो इमोशनल इंटेलिजेंस इन द एनवायरनमेंट। ना टीचर्स के लेवल पर प्रैक्टिस हो रही है, ना स्टूडेंट के लेवल पर प्रैक्टिस हो रही है। कंप्यूटर स्किल्स बच्चों के इतने ज़्यादा इन्हांस हो चुके हैं वो गैजेट्स और उसकी वजह से, इसकी वजह से कहा जाता है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत सफ़र करती है, बिकॉज योर इमोशंस व्हेन दे गो हाई एट सम प्लेस, तो उनको सेटल होने के लिए टाइम चाहिए। जैसे आप देखें ना, अगर कोई घर से निकले और घर में सुबह सुबह कोई लड़ाई हो गई है, कोई बात हो गई है, यू गॉट अपसेट ऑन समथिंग, तो अब आप काम पे आए हैं और आप सारा दिन काम करके जब वापस जा रहे हैं तो थोड़े से इमोशन सेटल हो जाते हैं। लेकिन अब एवरीवन हैव देयर फोन विद देम, इन बिटवीन क्लासेस भी आपको मैसेजेस आ रहे हैं और आप भी मैसेज कोई ना कोई कर रहे हैं, तो आपके इमोशंस को सेटल होने का टाइम नहीं मिलता। और बच्चों के साथ भी यही है कि वो पता नहीं क्लास में बैठ के भी क्या कर रहे होते हैं। यानी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि उन गैजेट्स पे नोट्स बना रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, उस पे बैठ के अपनी अपनी मैसेजिंग कर रहे होते हैं। They are very skeptical and they are totally desensitized. If I look at my own kids at home, I have always been educating them in all skills. Sometimes I actually sit back, especially ये जो university level तक होते हैं, and I keep wondering where did I go wrong? ये वाला जुमला इनके मुंह से निकला कैसे? This is such an insensitive remark towards a teacher, towards a brother, sister at home, towards parent. कैसे इन्होंने ये बात बोल दी? Who cares, whatever, परवाही नहीं है, इस किस्म की सारी बातें करते हैं। और मल्टीटास्क को इतना थ्रिल और एंजॉयमेंट, ऑलवेज वो उनका एक डोपामीन हाई जा रहा होता है, एड्रेनलिन गश जा रहा होता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में हर वक्त रह रहे होते हैं। एंड दे फील कंफर्टेबल चैलेंजिंग अदर्स, डेयरिंग इतने हैं। ये चीज़ इनके लिए बहुत बड़ी किलर बन रही है। हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, आई मीन लाइक इफ योर इमोशंस आर सेटल्ड एंड यू हैव हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ योर सेल्फ और अदर्स, तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन अगर आपकी बाकी सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं और आपने अपने से और दूसरों से हाई एक्सपेक्टेशन रखी हुई है, दैट बिकम्स बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, बिकॉज आपको फिर वो चीज़ों को सही जगह प्लेस नहीं करना आता, हर चीज़ को निगोशिएट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा ईगो जो है वो हमें सिर्फ ये सॉरी का वर्ड नहीं बोलने देता। So if you look at some basic parameters, how emotional intelligence helps us, it helps us soothe and calm ourselves when we are upset. आप में से कौन कौन कभी अपसेट हुआ है क्लास लेते हुए या यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट से डील करते हुए? होते हैं हम सब अपसेट ना। सो वी नीड दैट इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ कंट्रोल, मैनेज एंगर, कंट्रोल इम्पल्सेस, एक्सप्रेस इमोशंस एट राइट टाइम एंड प्लेस। As I told you, मैं भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ and sometimes they give you such difficult time, इतना आपको जिच कर देते हैं कि आपसे पढ़ाया नहीं जा रहा होता। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस विल टेल यू when to actually nail them, बिकॉज वो चाह ही रहे होते हैं कि आप गुस्से में आएँ और गुस्से में आकर आप अपना सब्जेक्ट मैटर छोड़ दें। So if you are emotionally intelligent, you will teach them in the most effective manner and deal with the issue in, again, an effective manner. Avoiding sustained anxiety, anger and depression. Handling inevitable defeats and setbacks in life. Career में हो जाती हैं, कोई आपकी और family से related होती हैं, कितने कुछ हमारे होते हैं challenges. Then preventing negative emotions from dominating over judgment and problem solving. Tolerating frustration, accepting and valuing yourself. For me, this parameter is the most important, because the moment you start giving yourself value as an individual, your whole life starts transforming. क्योंकि आपको दुनिया में अक्सर नेगेटिव इम्पैक्ट से मिल रहे होते हैं। हर शख्स आपको बता रहा होता है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन आपने अपनी वैल्यू खुद समझ ली, you will achieve big milestones in life. और learners पे आपके क्या क्या impacts होते हैं? They will be more engaged. There is greater motivation for them to study a subject, a greater readiness to take risk in their learning, more positive approach, a readiness to collaborate, more creativity and more tenacity. So आप देख सकते हैं कि overall emotional intelligence is going to benefit you as an individual
benefit your family, benefit your professional life, benefit your learners, your students. और अगर हम थोड़े से prerequisites देख लें for this emotional intelligence, if you ask me, the most important prerequisite is your intention, your ikhlas. I don't want to practice emotional intelligence because when people look at me and they go, wow, wajiba. I want to do it for Allah's sake. Because दुनिया में तो रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अल्लाह के पास भी रिवॉर्ड मिलेगा. जैसे कि आपके सामने ये वर्स है सूरह नहल की वर्स नंबर 97. मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, जो कोई भी अमल करेगा सालिह, चाहे वो मर्द हो या औरत, और वो मोमिन होगा, फलनुहयिन्नहु हयातुन तय्यबा, हम उसको ज़िंदगी देंगे, बेहतरीन ज़िंदगी, हयातुन तय्यबा, पाकीज़ा ज़िंदगी, वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, we will bestow on such their reward according to the best of their action. हम उनको अजर देंगे, अल्लाह ताला कह रहे हैं. तो ये जो पाकीज़ा ज़िंदगी होती है, इंटेंशनल बेस्ड होती है. You do it no matter what. और इसका जो मज़ा है ना, एक होता है कि when someone is watching you, someone is keeping check on you, someone is grading you, और एक होता है you're just doing it because you feel that you need to give it out and you're doing it for Allah's sake. तो सबसे पहला prerequisite इसमें मैं हमेशा इसको रखती हूँ, intention. It could be your family member, your students, your all interaction with you, even your peers, your colleagues. और इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन देखते हैं और उसकी डोमेन्स को अंडरस्टैंड करते हैं. The capacity for recognizing our own feelings and those of others, for motivating ourselves and for managing emotions well in ourselves and in our relationship. मैं आपको इसको थोड़ा सा डिकोड करके बताती हूँ. 5 डोमेन्स हैं. अगर आप ये याद कर लेना अपने 5 फिंगर्स पे, और इनको बार बार हम रिपीट करेंगे इंशाल्लाह. आई वुड वांट के टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आपकी फिंगर टिप पे. मैंने कुछ एक्सपर्ट से जो कुछ चीज़ें और भी सीखी, वो हमेशा कहते हैं whenever there is a decision that you have to take in your life, जैसे होता है ना ऑन स्पॉट डिसीजन, आपके ये वाले स्किल्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि विद इन मिली सेकेंड आपके दिमाग में से ये सारी बातें गुजर जाएं और आप स्कैन करके अपना डिसीजन लें. जिसमें 7 हैबिट्स भी आती हैं, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी आती है, एंगर मैनेजमेंट भी आती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आती है. पहला डोमेन जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का है वो है नो योर ओन इमोशन. व्हाट मेक्स मी स्ट्रेसफुल, व्हाट मेक्स मी एंग्री, व्हाट मेक्स मी हैप्पी, व्हाट मेक्स मी सुपर एक्साइटेड, व्हाट गिव्स मी एक्सट्रीमली लो मूड, व्हाट इज समथिंग आई कैन नॉट टॉलरेट, व्हाट इज समथिंग आई कैन लिव विद. अक्सर लोगों को अपना नहीं पता होता. मैं कई कॉन्फ्रेंसेज में जब जाती हूँ और आई एम सिटिंग इन अ काउंसलिंग बूथ, and lot of people who come to me in like recent years I've seen that, especially this trend, when people come तो वो आके अक्सर ऐसी बात कह रही होती हैं कि मुझे नहीं समझ आ रही कि why I'm not happy with life. और जब मैं उनको थोड़ा सा डिकोड करने के लिए कहती हूँ, they're lost. बिकॉज हम अपने आप को एनालाइज इतना नहीं करते. यहाँ मैं कह रही हूँ एनालाइज, नॉट ब्रूज. हम अपने आप को ब्रूज और स्टैब बहुत करते हैं. आई एम नॉट अ गुड पर्सन, आई डोंट डिजर्व समथिंग. एनालाइज, व्हाई आई एम फीलिंग दिस. कहीं कहीं आपको इवन जेलसी भी होती है जब हम किसी, कई दफ़ा कहते हैं ना किसी कुलीग को कुछ मिला और कोई और आके बताता है, तो तुम्हें पता चला वो फलां को तो ये इस काम के लिए सिलेक्शन हो गई. व्हाट डू वी से, आर वी हैप्पी? हम कहते हु केयर्स, हमें क्या, हाँ जी कोई सिफारिश होगी, कुछ होगा. इफ यू जस्ट सिट डाउन, पॉज फॉर अ मिनट एंड आस्क योरसेल्फ, व्हाट्स द इमोशन राइट नाउ. कौन सा इमोशन है? नेगेटिव. कौन सा? जेलसी. वी डोंट वांट टू एडमिट इट बट वी आर जेलस एट टाइम्स. तो अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना. सेकेंडली, मैनेज योर इमोशंस. वंस यू रिकॉग्नाइज, यू हैव टू मैनेज. I have done so many hundreds and thousands of workshops for professionals, for mothers, for parents, for students. Every other person would tell me मुझे स्ट्रेस होता है. मैं पूछती हूँ आपने स्ट्रेस के बारे में कितने वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं? कोई नहीं. कोई किताब पढ़ी है? नहीं. ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ा है? नहीं. टाइम नहीं है. लेकिन स्ट्रेस बहुत है, गुस्सा बहुत आता है. एंगर मैनेजमेंट अटेंड करते हैं? नहीं. टाइम मैनेजमेंट की समझ ही नहीं आती ना, वक्त जो है ना सही गुजरता नहीं. पढ़ा है कभी टाइम मैनेजमेंट के बारे में? नहीं.
How can you manage when you don't know, and if you know, you then don't make a plan for yourself? Then we come to recognizing emotions of others. अब आप यहाँ पे difference देखें, know your emotion, manage your emotion. When it comes to other people, what does it say? Know their emotion or recognize their emotion? Recognize. What's the difference between knowing and recognizing? Know का मतलब सिर्फ just जानना और recognize मतलब just to have a feel. Yes. अगर वो feel आती है तो then you can imagine कि उसकी ये state क्यों. जी. Know ज़्यादा stronger है ना. आप अपने आप को अंदर से जान सकते हैं ना. मतलब आपको अपने घर की कैबिनेट का भी पता है, अलमारी में क्या रखा है, फलां कमरा किधर है. लेकिन दूसरे के घर का तो नहीं पता ना. उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जी अगर उन्होंने मुझे इस कमरे में कहा इस कमरे का वॉशरूम यूज़ कर लो तो ये लगता है गेस्ट रूम है, लगता है किसी बच्चे का कमरा है, लगता है इनका अपना मास्टर बेडरूम है, लगता है यहाँ पे कोई ख़ास रहता नहीं है इंसान, कभी इन्होंने यूज़ नहीं किया. दूसरे के लिए हम थोड़ा सा उसको मार्जिन देते हैं. नो, मुझे लग रहा है इसको गुस्सा आया हुआ है. कई दफ़ा आप किसी से पूछते भी हैं आर यू एंग्री, वो क्या कहते हैं? नो आई एम नॉट. सास बहू के झगड़ों में बहुत होता है ना. सास का लगता है मुंह बना हुआ है. अक्सर आके जब मुझे कोई कहता है कि सास तो बड़ी मेरी ऐसी है, कहती उन्होंने खुद कहा था आपसे. नहीं कहा नहीं था, मुझे पता है. ये नोइंग है. वी कैन ओनली नो आवर इमोशंस. बॉस ने ना जान के मुझे आज डांटा है. उन्होंने कहा कि मैंने जान के डांटा है. नहीं कहा नहीं है, लेकिन मुझे पता है, पक्का पता है. यू कैन ओनली रिकग्नाइज. यू कैन से आई स्पेक्यूलेट that this happened for this purpose, but I'm not sure. I'm not sure कि इस वजह से हुआ है. अपने बारे में हम ज़्यादा श्योर हो सकते हैं. दूसरे को देख के हमने कहना है ये शख्स नेगेटिव है, इससे कैसे डील करना है, ये पॉजिटिव है, इससे कैसे डील करना है, ये हाइपर हो जाता है, इससे कैसे बात करनी है, इसको ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, इससे कैसे रहना है. एंड देन यू हैंडल रिलेशनशिप विद अदर्स. अब आप यहाँ पे भी देखें, when you know yourself, you manage your emotions. Talk about others, you recognize their emotions and you handle the relationship. You can't change them. Emotional intelligence हमें ये बताती है stop making an effort to change other people. लोग मुझे आके डेली 8-10 लोग कहानी ये सुनाते हैं, फलां को ये नहीं ना करना चाहिए. मैं कहती हूँ आप ठीक कह रहे हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन I can't go and advise them. I can't advise your husband, your wife, your peer, your boss, your student, your teacher. ये करें ये ना करें. I can only advise you how you can make your way out of this situation. तो इमोशनल इंटेलिजेंस में हमें ये याद रखना होगा कि हैंडल करना है दूसरों के रिलेशनशिप को. जैसा वो इंसान है आपने वो रास्ता निकालना है कि मैंने इसके साथ डील करते हुए कैसे आगे बढ़ना है. और इसके बाद हम देखते हैं we get motivated enough to reach our goals, whatever goals they are. They could be academic goal, they could be family goal, relationship goals, whatever. अगर आप इस पूरे प्रोसेस से नहीं गुजरे, आपके रिलेशनशिप्स इतने मेस्ड अप हो जाते हैं, आपके इमोशंस इतने डिजास्ट्रस हो जाते हैं, you cannot deal with them. हम जैसे ही कोई मसला आता है ना, कहते हैं मुझे छोड़ो, मेरी खैर है. मेरा तो दरअसल गुस्सा भी जेनेटिक है. मेरे तो दादा को आता था, फिर बाप को आता था, फिर मुझे आता था. मेरी तो जिंदगी के मसले ही बड़े हैं ना. दूसरे इंसान की हिम्मत कैसे हुई कि वो ये करे? And when we do that, that's where the problem starts. And when we talk about any classroom culture, as a teacher, आपका अपने बारे में सेल्फ नॉलेज बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए. आजकल कल्चर्स हैं यूनिवर्सिटीज में स्पेशली हैं कि स्टूडेंट ने कॉफ़ी भी रखी हुई है, स्नैकिंग भी करें. आई डोंट लेट माई स्टूडेंट स्नैक इन माई क्लास. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कह देती हूँ शुरू में ही कि मेरे 2-3 रूल्स हैं. एक तो ये कि मुझे बैक बेंचर्स बहुत क्लैरिटी से नज़र आते हैं. तो अगर कोई पीछे बैठना चाह रहा है इसलिए कि पीछे बैठ के कुछ क्लास में गपशप लगाए, मुझे तंग करे, तो याद रखिए कि मुझे आप सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. तो दूसरी बात बता देती हूँ कि मेरी क्लास में कोई खाए पिएगा नहीं, नॉट इवन बबल. I want you to focus on education. If you have been here since morning, आपने नाश्ता नहीं किया, आप थके हुए हैं, आपको सर में दर्द हो रही है, आपको भूख लग गई है, feel free to go out of my class, take 10 minutes, have your coffee or snack, come back. मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगी, लेकिन मेरी क्लास में नहीं खाना. आपस में बात नहीं करनी मेरी क्लास में. अगर लतीफ़ा भी सुनाना है तो मुझे सुनाना है, फिर मेरा लतीफ़े का जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहना है. फिर माइंड नहीं करना.
और हम हर एक की रिस्पेक्ट करेंगे। आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगी, आपका कोई और कुलीग कोई सवाल करेगा, हम सबके रिस्पेक्ट करेंगे, रिस्पेक्टफुल तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। और ये वाले 3-4 रूल्स मैं हर क्लास में किसी ना किसी तरह से रिवाइज करती रहती हूँ, बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट यूज्ड टू दीज थिंग्स नाउ, उनको बताया ही नहीं जाता। अच्छा, सेकेंड, सेल्फ मैनेजमेंट करनी है। जब मैंने ये रूल्स दे दिए, आई एम 100% श्योर दे आर गोइंग टू ब्रेक इट। फिर चिप्स का पैकेट खुलेगा, फिर बबल होगी। अब मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच में एग्जांपल देती हूँ। मैं ये नहीं करती लेक्चर रोका का, तुम यू डिड दिस, निकल जाओ मेरी क्लास से बाहर, गेट आउट, तमीज नहीं है, ये नहीं है, हाउ डेयर यू डू दैट। नो, बात करते करते मैं कहती हूँ, अब देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, तो आपको पता है सुबह मेरा स्ट्रेस हाई हो रहा है बिकॉज आई सी सम ऑफ द स्टूडेंट्स ईटिंग बबल, दे हैव प्रॉब्ली फॉरगॉटन द रूल। वो चुप करके मैं नोट करती हूँ, वो यूं करके निकाल के पीछे कर रहे होते हैं। किसी किसी स्टूडेंट को वहां बर्दाश्त कर लिया, जैसे ही क्लास खत्म हुई ना, मैं शूट करके उस स्टूडेंट के पास जाके कहती हूँ, आई नीड टू टॉक टू यू। अकेले में जब आप बात करते हैं ना, स्टूडेंट की घिग्गी बन जाती है, आवाज नहीं निकलती। स्टूडेंट मैं कहती हूँ जी, मैं दिल में सोचती हूँ बेटा क्लास में तो आप इतने शेर बन रहे थे। And what I do is, when I talk to them, this is my self-management which has such impact on them. सारे स्टूडेंट्स उसको दिखाते जा रहे हैं, आप तुम्हें पता चलेगा, आप देखना मैडम क्या करेंगे। I don't give them any threats. I'm going to take you to the authorities and I'm going to give you penalty. Nothing. I tell them, if there is something in the class that is bothering you, if there is something that is boring you, something that you feel is not relatable to you, please let me know. I will manage it. नहीं मैम कोई मसला नहीं, कोई मसला। मैं बता रही हूँ ना, हवा निकल जाती है सारी। थ्रेट दिया तो वो भी शेर होते हैं, उनका भी वो एड्रेनलिन बढ़ता है बॉडी में, फाइट एंड फ्लाइट में जाते हैं। आई डोंट वांट देम टू गो इन फाइट एंड फ्लाइट। तो मैं कहती हूँ अच्छा बेटा देखें, यू आर लाइक माई किड्स ना, कि मेरा अगर अपना बच्चा ऐसे करता ना तो मैं उसे सीधा कर देती, बट आई एम गिविंग यू सम स्पेस, सम रूम। कैन आई एक्सपेक्ट यू टू बिहेव इन दिस मैनर इन द क्लास? जी मैम, आई एम सो सॉरी। मैं कहती हूँ नो, आई डोंट वांट सॉरी, आई वांट दैट बिहेवियर इन क्लास। इफ यू गिव मी दैट बिहेवियर इन क्लास, दैट इज योर सॉरी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इन 10 years आई वुड से बड़े बड़े हार्ड नट्स जो हैं सीधे हुए हैं, लेकिन कई दफ़ा उनको 6-8 महीने बर्दाश्त करना पड़ा है। दैट इज हाउ योर रिलेशनशिप इज बिल्ड। मेरे लिए खुशी होती है जब वो मुझे कोई अप्रोच कर देता है मेरे सोशल मीडिया पे, मैम आपकी क्लासेस हम मिस कर रहे हैं, लड़कियां आके मिलती हैं। सो ये है एज अ टीचर, more managed you are in your domain, more benefit you will have. अच्छा, अब ये करेंगे कैसे? कुछ बेसिक्स पे हम आगे चलते हैं। IQ और EQ का हमें फ़र्क पता है। हमारे लिए IQ जितना इम्पोर्टेंट है फॉर सक्सेस इन लाइफ, इन योर करियर, इन योर फैमिली, इन योर रिलेशनशिप, इट्स EQ। अगर आपकी इमोशनल क्वेश्चन स्ट्रांग नहीं है, जितनी मर्जी आपके पास हाईएस्ट GPA हो, आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज हो, बड़े बड़े परफॉर्मेंस फील्ड हो, बड़े बड़े आपने पेपर्स सबमिट किए हो, यू विल फेल एज एन इंडिविजुअल, यू विल फेल इन लाइफ। और हमारे दीन का तो प्रिंसिपल ही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, could not read and write. What did he have? Emotional intelligence.